So, good morning, students. So, today we are going to discuss a next topic, that is molecularity of a reaction. Yesterday we have studied order of reaction, different orders of reactions, zero order, first order, second order, and third order or nth order of reaction. We have find out the units of rate constant for each order of reaction, for zero order reaction, for first order, second order, and for nth order. So today we are going to discuss our next topic, that is molecularity of a reaction. So first of all, understand what is molecularity of a reaction. So molecularity of a reaction is simply defined as the number of species which are undergoing simultaneous collision in a chemical reaction. So here you can see molecularity of a reaction, number of species undergoing simultaneous collision in a chemical reaction. Here we have one example in which 2 moles of ammonia are undergoing decomposition. So here 2 moles of ammonia are present. So molecularity of reaction will be equal to what? 2. Molecularity of reaction is equal to what? 2. And we can take another example. Suppose here I am considering thermal decomposition of HI. So 2 moles of HI undergoing decomposition to form hydrogen gas plus I2. Suppose it is also present in gaseous state. So here also the molecularity of the reaction is what? 2. So molecularity of reaction is 2. Molecularity of reaction is 2. Here we can consider another example. Suppose H2O2, hydrogen peroxide, is undergoing decomposition and it is forming hydrogen gas plus O2 gas. So only 1 mole is there. So it can collide with the walls of the container. Here molecularity of the reaction will be equal to what? 1. And in this example, molecularity of reaction will be equal to 2. So this molecularity of a reaction is a theoretical concept. Molecularity of a reaction is a theoretical concept, while yesterday I have told you the order of reaction is an experimental concept. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस तरह का कॉन्सेप्ट है? एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, जबकि मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन जो है वो किस तरह का कॉन्सेप्ट है? ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है. देन अगर और हम बात करें, मोलिकुलरिटी किसी भी रिएक्शन की जीरो नहीं हो सकती है, बिकॉज फॉर ए रिएक्शन टू टेक प्लेस एटलीस्ट वन रिएक्शन शुड बी देयर. सो मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन कैन नॉट बी जीरो नहीं हो सकती है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है. एज फॉर एज वी हैव सीन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो फ्रैक्शन भी हो सकता है, बट मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन विल बी ऑलवेज होल नंबर, आइदर 1 और 2, बट इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल. मोलिकुलरिटी किसी भी रिएक्शन की जीरो नहीं हो सकती है, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है. 1 होगी या तो 2 होगी, होल नंबर होगी. व्हाइल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0, इट कैन बी फ्रैक्शनल. And if we consider a complex reaction, now first of all understand what is a complex reaction. See, if we apply the concept of molecularity for a complex reaction, then it will be meaningless to apply the concept of molecularity to a complex reaction. Means molecularity does not have any significance for a complex reaction. But in case of a complex reaction, if we are considering elementary steps, elementary processes. Now what are elementary processes? Each step in a complex reaction, because first reaction is taking place, then second reaction is taking place, then we are writing overall reaction, then each step which we are obtaining, which we are writing for obtaining overall equation, then each step in a complex reaction is known as what? Elementary step. Then the concept of molecularity can be applied only in case of a elementary process, elementary reaction, but in case of complex reaction it will be what? Meaningless. So here we have studied molecularity. What is molecularity? It is defined as the number of species which are undergoing simultaneous collision in a chemical reaction. Molecularity of a reaction can be what? Cannot be 0, it can be ऑलवेज होल नंबर. ये हमेशा क्या होगी? होल नंबर होगी. 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, एंड इट कैन नॉट बी जीरो नहीं हो सकती है, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है. ठीक है. सो यू कैन राइट अ क्वेश्चन
you can distinguish between molecularity of a reaction and order of reaction. And one more thing, order of reaction is an experimental concept, while molecularity of a reaction is what? A theoretical concept. So you can distinguish between molecularity of a reaction and order of a reaction. So students, our next topic is integrator rate equation, derivation of integrator rate equation in case of a zero order reaction. So here we will derive integrator rate equation for zero order reaction. So suppose A is a reactant and it is changing into products. A हमारे पास क्या है? reactant है और एक इसमें चेंज हो रहा है, products में चेंज हो रहा है. And here we will apply a concept of rate of reaction. Here rate is equal to, or before writing equal to we will write rate is directly proportional to A raised to power 0, since the reaction is following what? A zero order kinetics. Now rate is equal to rate constant K A raised to power 0. Anything raised to power 0 is equal to what? 1. So here we will obtain an expression rate is equal to what? Rate constant K. अब rate को किस टर्म में लिख सकते हैं? Rate can be expressed minus dA over dt is equal to what? K. रेट के लिए क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा? माइनस dA over dt is equal to K माइनस dA. dt को हम दूसरी साइड ले गए तो क्या बन जाएगा? K dt. ठीक है. अब ये जो आपके पास इक्वेशंस आ रहे हैं इनकी आप कर दो इंटीग्रेशन. इनको क्या कर दिया? इंटीग्रेट कर दिया. तो माइनस सो हम इस इक्वेशन की इंटीग्रेशन कर देंगे. इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस डी ओवर ए की इंटीग्रेशन आ गई. ए माइनस साइन वैसे भी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है. माइनस ए इज इक्वल टू के टी प्लस आई. इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या आ जाएगा? यहाँ पे आई आ जाएगा. उसके बाद एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 ए इज इक्वल टू व्हाट? ए नॉट. So minus A naught is equal to K into 0 plus I. यहां से हमारे पास I की वैल्यू क्या आ गई? जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमारे पास ऐड हुआ था उसकी वैल्यू क्या आ गई? माइनस A naught. ओके. नाउ I की जगह पे क्या वैल्यू यूज करेंगे हम? माइनस A naught यूज करेंगे इस इक्वेशन में. माइनस A is equal to KT माइनस A naught. ठीक है. ये माइनस का A naught इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा. हमारे पास वैल्यू बन रही है KT इज इक्वल टू A naught माइनस A. यहां से K की वैल्यू क्या बन जाएगी? K इज इक्वल टू A naught माइनस A अपॉन T. So this is an expression for rate constant in case of a zero order reaction. Here A naught is representing initial concentration of the reactants and A is representing what? A concentration of the reactant at time t. So here we will have expression K is equal to A naught minus A upon t. So this is integrator rate equation in case of a zero order reaction. And one more thing, if we want to find out the expression for half-life period, if we want to find out an expression for half-life period of a zero order reaction, then at time or for half-life period of zero order reaction at time t is equal to t half of the reactants has been converted into products. So a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a naught by 2, क्योंकि आधे रिएक्टेंट जब वो क्या हो चुके हैं? प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं. तो यही वैल्यूज हम यहाँ पे इसमें यूज कर लेंगे.
टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 2 अपॉन के। इसको सॉल्व कर लो। 2 ए नॉट माइनस ए नॉट क्या हो जाएगा, ए नॉट बाय 2k। सो टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2k. This is an expression for what? Half-life period of a zero order erection. So in this way we can derive the integrator rate equation in case of a zero order erection. देख सकते हो आप, एक बार फिर से देख सकते हो कि किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, कल भी हमने स्टडी किया था। रेट के लिए क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ए रेज टू पावर 0। रेट के लिए ये एक्सप्रेशन आ जाएगा ए रेज टू पावर 0। रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के हो गया इनटू ए रेज टू पावर 0। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू व्हाट, 1। ए रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। सो k इंटू 1 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब रेट के लिए एक्सप्रेशन लिखा, रेट माइनस डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू के। डी टी को इस साइड ले गए, के डी टी बन गया, इंटीग्रेशन कर दी, माइनस साइन इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, माइनस डी ए की इंटीग्रेशन वैसे भी हमारे पास ए आर इज इक्वल टू के टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या आ गया, आई। उसके बाद एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू व्हाट, ए नॉट वैल्यू पुट कर दी, माइनस ए नॉट इज इक्वल टू के इंटू 0 प्लस आई। आई इज इक्वल टू माइनस ए नॉट वैल्यू आ रही है हमारे पास, ठीक है। सो आई की जगह पे वैल्यू यूज कर ली, माइनस ए इज इक्वल टू के टी माइनस ए नॉट, के टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए, के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए बाई टी। एंड फॉर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एट टाइम टी इज इक्वल टू टी हाफ, ए इज इक्वल टू व्हाट, ए नॉट बाई 2 because half of the reactants has been converted into what, products. Now T half is equal to A naught minus A naught by 2. LCM ले लोगे 2 A naught minus A naught क्या हो जाएगा, A naught by 2. So 2 यहाँ पे multiply हो जाएगा, 2k बन जाएगा। T half is equal to A naught by 2k. This will be the expression for half life period of a zero order reaction. Okay students, नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटीग्रेटर रेट इक्वेशन इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट क्या डिराइव करने वाले हम, इंटीग्रेटर रेट इक्वेशन किसके केस में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में हमारे पास एक्सप्रेशन के बन जाएगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू पावर 1। व्हाई, बिकॉज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज व्हाट, 1। एंड रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इंटू ए रेज टू पावर 1, नो प्रॉब्लम इन दिस, माइनस डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू के ए। इसके बाद हम इसको रीअरेंज करके लिख लेंगे, माइनस डी ए ओवर ए इज इक्वल टू के डी टी। ये जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे, माइनस साइन इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, माइनस डी ए ओवर ए इज इक्वल टू के डी टी। ठीक है, के डी टी की इंटीग्रेशन वैसे प्रीवियस इक्वेशन की ही तरह आ जाएगी, क्या आ जाएगी, के टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई। और यहां पे माइनस डी ए ओवर ए, डी एक्स ओवर एक्स की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग एक्स, वैसे ही यहां पे क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ए आ जाएगा। सो हियर यू कैन राइट द रिजल्ट, इंटीग्रेशन ऑफ dx over x is equal to natural log x। ये रिजल्ट हमने मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन का रिजल्ट यहां पे यूज किया। उसके बाद एट टाइम t is equal to 0, a is equal to a naught। ये वैल्यूज आप यहां पे क्या कर दोगे, पुट कर दोगे, माइनस नेचुरल लॉग क्या बन जाएगा, ए नॉट इज इक्वल टू के इंटू 0 प्लस आई। तो यहां से हमारे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई की वैल्यू क्या आ गई, माइनस नेचुरल लॉग ए नॉट। ठीक है, इस ये जो भी हमारे पास वैल्यू आ रही है, आई की वैल्यू जो आ रही है माइनस नेचुरल लॉग ए नॉट, इस वैल्यू को हम कौन सी इक्वेशन में यूज करने वाले, हम इस इक्वेशन में यूज करने वाले हैं। सो माइनस नेचुरल लॉग ए इज इक्वल टू के टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई की वैल्यू क्या थी, माइनस नेचुरल लॉग ए नॉट। ठीक है,
अब इसको अगर दूसरी साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, रीअरेंज करके लिखा है इसको, के टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ए नॉट माइनस नेचुरल लॉग ए। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है इसकी। और उसके बाद के टी, अब यहां पे लॉग में क्या फॉर्मूला बन रहा है, लॉग एम माइनस एन इज इक्वल टू लॉग एम ओवर एन, नेचुरल लॉग ए नॉट ओवर ए। नेचुरल लॉग को अगर लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो के टी इज इक्वल टू 2.303 ए नॉट, नेचुरल लॉग को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पे लॉग में कन्वर्ट कर लिया, लॉग ए नॉट बाय ए। और टी को दूसरी साइड ले गए तो के हमारे पास क्या बन गया, 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट over A. So this is an integrated rate equation in case of a first order reaction. ये क्या आ रहा है हमारे पास, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ रही है किसके केस में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में। इसके बाद नेक्स्ट जो टास्क है हमारा वो क्या है, हाफ लाइफ पीरियड के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना। हाफ लाइफ पीरियड of first order reaction. So see, K is equal to 2.303 अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, T हाफ log, अब हाफ लाइफ पे होगा क्या, हाफ ऑफ द रिएक्टेंट विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, प्रोडक्ट, तो बचेंगे कितने, A नॉट बाय 2। ठीक है, सो यहां से हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बन रहा है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग ए नॉट से ए नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, लॉग 2। ठीक है, टी हाफ को दूसरी साइड लेंगे, सो टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, एंड लॉग 2 की वैल्यू कितनी है, 0.3010। सो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा आपके पास, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। सो इन दिस वे यू कैन डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।